Binay Singh, political analyst, joining us. Also, Vikram Singh Yadav, leader of the Shiv Sena, joining us. Vikram Singh, सबसे पहले आपके पास आते हैं. एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद क्या आघाड़ी सरकार अब लाइफ सपोर्ट पर है? रिपीट करिए जरा, सुना नहीं मैंने. आप जरा. विक्रम सिंह, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आघाड़ी सरकार इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है? 35 एमएलए जो हैं वो नॉट रीचेबल हो गए हैं. थोड़ा इंतजार करिए, इनको जरा सामने आने दीजिए और कितने नंबर्स उनके पूरे होते हैं अभी कहना जल्दबाजी होगी. जरा अभी देखिए, ये सब कहने से कुछ नहीं होता. हमारे संपर्क में है सब, जो भी जहाँ पे हैं. लेकिन अभी आप ये इस तरीके का कोई दावा कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है. क्या आपके संपर्क में है वो? हाँ, बिल्कुल संपर्क में है. बिल्कुल संपर्क में. किन एमएलए से वहां पर बात हो पाई है जो सूरत में है इस वक्त? देखिए, हमारे सीनियर नेताओं ने इस चीज का पुष्टि की है. उनसे क्या बात हुई है ये तो वो जाने. संजय राउत जी ने आपके मीडिया पे आके कहा है उनके संपर्क में है, और ऐसा कुछ नहीं है. चलिए, आप पे वापस लौटता हूं. विनय सिंह, इज दिस ऑपरेशन कमला इन महाराष्ट्र, इज द बीजेपी बिहाइंड दिस रेबेलियन एज इज बीइंग alleged by the Shiv Sena? Rohit, it's for sure that the Shiv Sena is on a life support system, and I think it's matter of a day or two. Things will be very clear, and you know why this happened. The things are very clear, as one of the correspondents just mentioned, that it was because of dynasty. So it was just not dynasty politics which led to this situation. It was corruption, it was dynasty politics, it was appeasement politics, and this was not the real Shiv Sena, and this was not the real Thackeray Parivar. Thackeray Parivar never directly they were involved in contesting elections. This was the first time Uddhav became CM, and that was not enough. So his son became an MLA and he became a minister. So there was a lot of resentment in the party due to that. The senior party leaders, they were not, taken care of. They were not heard. They were not getting due importance. So one more thing, Rohit. But Binay Singh, does it augur well for the BJP? Is it okay for the BJP to seem like a party which topples established governments in the states? No, where the BJP is into the scene, just not because the MLAs are somewhere in the BJP ruled states. So where you see the BJP hand in that, it's because of their own reasons. Shiv Sena has to die. Why? I am explaining it. It is the roots, Rohit, not the branches, where the trees gets the strength. So what Shiv Sena did, they got details from their roots. This was not the real Shiv Sena. And at the time they decided that they are going to leave their roots, this fate was, this fate had to happen. And this is not only the life support system for Shiv Sena. It's a life support system for the politics of the Thackeray family also. Just not the party organization, for the Thackeray family also. They are also a life support system. They have lost credibility in the leadership. They have lost credibility in the public. There is a lot of resentment. And I think BJP has no role in that. If this government will go, this government will fall. Claims that I'm not sure whether Shiv Sena will agree to that. Binay Singh, for their own. Yes. Yes, Rohit. Yes. Binay Singh, hold your thought over there. Vikram Singh also stays with us. Just for a minute, I want to go to Amit, who is joining us from Gujarat, for a quick update on that. Amit, how many MLAs there of Shiv Sena there in camping in Gujarat right now? Are they in touch with the BJP? They are not reachable to the Shiv Sena, but are they reachable to the BJP? देखिए, इसमें 30 से ज्यादा जो है वो महाआघाड़ी सरकार के सूरत में इस समय सूरत की जो ली मेरिडियन होटल है डुमस रोड पर आई हुई, वहां पर मौजूद है. कल देर रात ये लोग यहाँ पर आ पहुंचे थे और जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल हैं, उनके साथ में एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र सरकार के बड़े कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, उनके साथ उनकी कल देर रात होटल में मुलाकात भी हुई थी. ली मेरिडियन होटल के अंदर
30 जितने जो एमएलए हैं, 30 से ज्यादा विधायक कहे जा रहे हैं, वो सारे यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उसमें से एक विधायक जो है नितिन देशमुख, उनको सीने में शिकायत हुई थी, दर्द की, तो उन्हें वहाँ पे सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट भी दिलाई गई है और अभी वो वहां पर मौजूद है, उन्हें ट्रीटमेंट दी जा रही है। लेकिन जो बात आ रही है कि क्या महाआघाड़ी सरकार के मिनिस्टर्स हैं, विधायक हैं, वो संपर्क में है या नहीं है, उसमें से कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है, कुछ ने डाइवर्ट किया है, लेकिन कुछ विधायकों का फोन, शिवसेना के जो विधायक हैं उनका फोन अभी भी चालू है और लगातार उस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से फोन किए गए हैं, शरद पवार की तरफ से फोन किए गए हैं, लेकिन उन लोगों ने वो फोन नहीं उठाए हैं। कुछ रीचेबल हैं, उसके बावजूद वो अपने आप को अनरीचेबल कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा संकेत ये है कि वो लोग महाराष्ट्र सरकार से नाराज हैं और वही नाराजगी की वजह से वो गुजरात में आए हैं। और गुजरात क्योंकि बीजेपी का होम स्टेट है, रूल स्टेट है, तो यहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं और इनकी मनसा साफ है, एकनाथ शिंदे जो कहेंगे वो सारे विधायक करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बात बताना चाहूंगा हमारे मिरर नाउ के दर्शकों को कि जब यहाँ पर ये सारे विधायक आए, आज सुबह की मैं बात बताना चाहूंगा कि जितने भी विधायक थे वो एकनाथ शिंदे के साथ में थे। एक बड़े हॉल के अंदर जब एकनाथ शिंदे उनसे बात कर रहे थे तो सारे विधायक जो थे वो एक ही आवाज में कह रहे थे कि आप जो करेंगे, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। और बिल्कुल रिलैक्स थे, उनका बॉडी लैंग्वेज वो था, आराम से जो होटल में जिस तरह से वो आए हैं कि छुट्टियां मनाने के लिए आए, उस तरह से उनका बिहेवियर था, वो एकदम रिलैक्स थे, उनपे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। और वो अपनी बातें जो है जिस तरह से वो पेश कर रहे थे एकनाथ शिंदे, उन्हें वो सारे विधायक बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। ये जानकारी हमें सूत्रों ने दी है। दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहता हूं कि इन विधायकों को यहाँ पर लाने का जो खेल है वो खेला कहाँ हुआ, तो वो खेला जो है वो महाराष्ट्र सरकार के जो महाराष्ट्र विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं देवेंद्र फडणवीस, वो और साथ ही साथ गुजरात भाजपा के अध्यक्ष नवसारी से सांसद हैं सीआर पाटिल, उनकी क्योंकि पकड़ महाराष्ट्र के अंदर भी है, तो ये दोनों के बीच में बातचीत हुई। राज्यसभा चुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, यहाँ तक राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को उसकी गंध नहीं आई। साथ ही साथ संजय राउत जो मीडिया में अपनी बड़बोली भाषा के लिए जाने जाते हैं, उन्हें गंध नहीं आई। उद्धव ठाकरे को गंध नहीं आई, आदित्य ठाकरे को गंध नहीं आई। और ये पूरा खेल इस तरह से हुआ, एक साथ 30 से ज्यादा विधायक अपनी महाराष्ट्र की भूमि को छोड़ के गुजरात की भूमि पर आए। एक 5 स्टार 5 सितारा होटल में वो मौजूद हैं। कुछ समय में एकनाथ शिंदे, ऐसा कहा जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, लेकिन बगावती तेवर है। कुछ विधायक रीचेबल होने के बावजूद वो अनरीचेबल है। वहां से मुख्यमंत्री का फोन नहीं उठा रहे हैं, बार बार संपर्क किया जा रहा है, शरद पवार की तरफ से फोन किया जा रहा है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाला समय महाआघाड़ी बहुत चिंता का विषय है। उनकी सरकार को बचाने के लिए उन्हें इन विधायकों को मनाना पड़ेगा और मान मनोबल का दौर चल रहा है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। जी। All right, Amit, thanks very much for joining us with lots of updates. Amit is giving that there are some MLAs who have kept their phones on, but they're getting the phones from senior leaders of the Shiv Sena and the NCP. They are not picking their call. So clear discontent over there. The question is, why could the senior leadership of these parties not sense this rebellion brewing in the ranks? That's the big question that remains to be answered from the Aghadi and the alliance partners. Binay Singh, let me come back to you. Is the BJP waiting to see if Shinde has the numbers before making its move? I think BJP has no role in what has happened till date or till now. But Eknath Shinde, he is a senior and a seasoned politician. If he makes any move towards BJP, so I think, as a suggestion I am telling, BJP must welcome it for the welfare of the state, for the future of the state, and to take this, government from a situation of chaos, So I think BJP must welcome Eknath Shinde if he takes a move towards BJP. Yes, Rohit. All right, Binay, stay with us. Let me go back to Vikram Singh, Shiv Sena के जो नेता हैं.
विक्रम सिंह, क्या राज्यसभा चुनाव के बाद ये एमएलसी चुनाव में भी आप बीजेपी को पछाड़ ना सके? क्या चल रहा है सेना में? सूत्र बताते हैं कि सीएम के खिलाफ पहले से ही नेताओं में असंतोष था। इस बारे में क्या सेना ने ये बगावत के सुर पहले नहीं सेंस किए? देखिए बीजेपी आज से नहीं, बीजेपी जिस दिन महाविकास अघाड़ी सरकार बनी उस दिन से कोशिश कर रही है और हर बार ये फेल नाकाम हुए हैं। देखिए सबको पता है कि दूसरे दलों से जो बीजेपी में आए हैं उनके साथ ये लोग क्या करते हैं। कल को एकनाथ शिंदे की एक बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे कल को अपने बेटे के लिए टिकट मांगेंगे तो क्या ये दे देंगे? तो नाराजगी तो वहां से शुरू होगी। अभी कोई नाराजगी, अभी छोटी मोटी जो भी नाराजगी है उन सब पे बात हो रही है, कोई बात होगी उसको मना लिया जाएगा। कोई ऐसी कोई बात नहीं। जितनी जिस हिसाब से अफवाह फैलाई जा रही है मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चिंता वाली बात है। ये सारा बीजेपी का एजेंडा है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र को उथल पुथल करें, सरकार को बदनाम करें, ऐसी अफवाह फैला दें कि महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है। आप मुझे बताइए कि ये एकनाथ शिंदे जी को ये क्या देंगे? कौन से लालच है ऐसा कि वो चले जाएंगे? कल को ये उनके बेटे को टिकट दे देंगे? ये तो कल को बोलेंगे हम तो परिवार में एक को टिकट देंगे। तो विक्रम जी, इतना तो बीजेपी तो एक तरफ है, लेकिन ये जो बगावत थी, द मर्मर्स ऑफ रूमर, ये जो दिस रिबेलियन दैट वाज ब्रूइंग, जो बगावत अंदर चल रही थी, इसके बारे में क्या सीएम साहब को और जो बड़े नेता हैं, शरद पवार आपके अलायंस पार्टनर है, इनको कोई खबर नहीं थी कि ये असंतोष बढ़ रहा है आपके अलायंस में? नहीं, देखिए संतोष अभी कुछ ऐसा कुछ जाहिर हुआ नहीं है कि, और छोटी मोटी कुछ भी अगर कोई बात होती है तो सब चीजों पे बात हो जाती है टाइम टू टाइम। अभी भी कोई बात ऐसी होगी उस पर बात हो जाएगी। उस पर भी जो भी है, जिसकी जो शिकायत है, जिसकी जो नाराजगी है, उन सबसे बात हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं समझता ये कोई बहुत बड़ा ये कोई ऐसा कोई होने वाला है। ये सारा एक तो बीजेपी का, ये तो एक बीजेपी मौके की तलाश में रहती कि कब क्या हो, गड़बड़ हो, कब क्या हो, तो उस चीज को छोटी सी बात को लेकर के बड़ा बना करके अफवाह फैलाते हैं। एक वही बात है। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से कोई खतरा है सरकार को। रोहित, द बिग क्वेश्चन इज, आप कह रहे हैं ये छोटी मोटी बात है, लेकिन आपके 35 एमएलए वहां पर हैं, आपका फोन नहीं उठा रहे हैं सेना का, एनसीपी का। The question is, can the Sena salvage the situation from here on? I'm afraid I have to thank you, Binay Singh and Vikram Singh. Thanks very much for speaking to us.